माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। সকলে হাত চাপৰি দিয়ক। জেপি নাড্ডা জিন্দাবাদ, জেপি নাড্ডা জিন্দাবাদ, জেপি নাড্ডা জিন্দাবাদ। এইখিনিতে আমাৰ মাজত আমাৰ অতি মৰমৰ তথা শ্ৰদ্ধাৰ বলিষ্ঠ নেত্ৰী, ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ নেত্ৰী তথা গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিৰ মাননীয় সাংসদ আমাৰ কুইনুজা বাইদেউ, মই এখন ফুলাম গামোচাৰে সম্বৰ্ধনা জনাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। এয়া মঞ্চত কুইনুজা বাইদেউ, সকলোৱে কওক কুইনুজা, কুইনুজা, কুইনুজা। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। ইয়াৰ পাছতে আমাৰ নিখিল ৰাভা ছাত্ৰ সন্থাৰ তৰফৰ পৰা নুমল ৰাভাই আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় অধ্যক্ষ জেপি নাড্ডা ডাঙৰীয়াক এখন ফুলাম গামোচাৰে সম্বৰ্ধনা জনাব। নমস্কাৰ, সকলোকে বহুত 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 শ্ৰদ্ধা জনাইছোঁ, মৰম জনাইছোঁ। এক বিশাল সভা আজি বকুত, আজি আপোনালোকে ৰেকৰ্ড ব্ৰেক কৰিছে, ইমান ডাঙৰ সভা পাতিছে। ইয়াত উপস্থিত আছে আমাৰ সকলোকে শ্ৰদ্ধাৰ আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি জেপি নাড্ডা ডাঙৰীয়া, তেখেতৰ কাৰণে এটা ডাঙৰ হাতজোৰে তালি মাৰিব লাগে। আৰু আমাৰ মঞ্চত উপবিষ্ট আছে আমাৰ প্ৰাৰ্থী, উমৈহতীয়া প্ৰাৰ্থী আমাৰ অগপ বিজেপি ৰাভা হাছাং যৌথ সংগ্ৰাম সমিতি UPPLৰ আমাৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ দাস ডাঙৰীয়া, তেখেতৰ কাৰণে এটা ডাঙৰ হাত তালি দিব লাগে। লগতে আমাৰ নাগৰমল স্বৰ্গীয়াৰী ডাঙৰীয়া, এক্সিকিউটিভ কনভেনৰ ৰাভা হাছাং অট'নমাছ কাউন্সিল সুমিত ৰাভা ডাঙৰীয়া, সোণাৰাম ৰাভা ডাঙৰীয়া, আৰু আমাৰ জিলাৰ সভাপতি মহোদয় আৰু মঞ্চত উপবিষ্ট মোৰ শ্ৰদ্ধাৰ ব্যক্তিসকল, বিভিন্ন ভাৰতৰ বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা আমাৰ বকু সমষ্টিক জয়যুক্ত কৰিবলৈ ইয়াত উপস্থিত থকা বহুকেইজন ব্যক্তি আমাৰ মাজত আছে। সকলোৰে নাম মই নলওঁ, সকলোকে মই শ্ৰদ্ধা জনাইছোঁ। আৰু মই এটা কথাই আজি বুজি পালোঁ, আমি যিটো চিন্তা কৰি আছিলোঁ বকু সমষ্টিত আজিৰ সভাখনত ৰাইজে আহিব নাই, ইয়াত আহিতো মই অৱগত হৈ গ'লোঁ। আজি বকু সমষ্টিত ইমানবোৰ ৰাইজ আপোনালোকে আহি পেলাই জ্যোতিপ্ৰসাদ দাসক সমৰ্থন জনাইছে, তাতকৈ ডাঙৰ কথা আৰু হ'বই নোৱাৰে। আজিৰ পিছত মই জানো আপোনালোক সকলোৱে মনত আজি এটা কথা বান্ধিছে যে বিগত দিনত যি অত্যাচাৰ চলিছে, যি অৰাজকতা চলিছে বকু সমষ্টিত, সেয়া আজি শেষ কৰিবলৈ আপোনালোকে ইয়াত উপস্থিত হৈছে। এই কথা মই বুজি পাইছোঁ। বিগত 5 বছৰ, 10 বছৰ, 15 বছৰ যি চৰকাৰখনে, যি বিধায়কগৰাকীয়ে আপোনালোকক বহুত কষ্ট দিছে, এইবাৰ কিন্তু আপোনালোকে প্ৰতিজ্ঞা লওক
যে জ্যোতিপ্ৰসাদ দাসক জয়যুক্ত কৰি বকো সমষ্টি তেওঁলোকৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিবই লাগিব। মই আপোনালোকৰ লগত আছো, নাড্ডাজী আপোনালোকৰ লগত আছে, সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া আছে, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া আছে। ইমানবোৰ উন্নয়নৰ কাম হৈছে বকো সমষ্টিত, তাৰ পিছতো এই সমষ্টিটো আমাৰ হাতৰ পৰা যদি গুচি যায় আমি চিৰদিন কান্দি থাকিব লাগিব। এইবাৰ আমাৰ মৰণপণ শৰাইঘাটৰ শেষ ৰণ, এই ৰণত আমি জয় হ'বই লাগিব। আৰু মই আপোনালোকৰ লগত আছো। আজি মই আহিছো, মই কালিও আহিম আৰু মই আহি থাকিম এইকেইদিন। মই বহুত সমষ্টি ঘূৰি আছো, মোৰ সময় নাই। কিন্তু আজি আমি দুখেৰে থাকিবলগীয়া হৈছে বকো সমষ্টিত। অৰুণোদয়ৰ ভাগ নহয়, আজি বিভিন্ন আঁচনিৰ ভাগ নহয়। আমি কাজিয়া কৰি কৰি 13 ফাইনেন্স 14 ফাইনেন্স আমি কাজিয়া কৰি কৰি ইয়াৰ আমি টকাবোৰ কাজিয়া কৰি কৰি ল'ব লাগে। কিন্তু আগন্তুক দিনত তেনেকুৱা হ'ব নোৱাৰে, কাৰণ নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া আমাক বহুত দিছে, তাৰ ভাগ আমি পাবই লাগিব। আমাৰ চৰকাৰখনে বকো সমষ্টিক বহুত দিছে, ইয়াত আমাৰ প্ৰতিনিধি নাই কাৰণে আপোনালোকে সকলোবোৰে তাৰ পৰা বঞ্চিত হৈ আছে। এইবাৰ আৰু নহ'ব। মই আমাৰ সকলো হিন্দু, সকলো মুছলমান, ইয়াত বসবাস কৰা সকলোকে মই এটা কথাই ক'ব খোজো, আৰু অৰাজকতা নহ'ব। সকলোৱে লগ লাগি অসমৰ প্ৰত্যেকগৰাকী হিন্দী, প্ৰত্যেকগৰাকী মুছলমান মানুহে এইবাৰ কংগ্ৰেছক দলিয়াই পেলাই ব্ৰহ্মপুত্ৰত পেলাই দিব লাগিব। মই দীঘলীয়া কথা নকওঁ, নাড্ডাজী আহিছে আপোনালোকৰ কথাবিলাক ক'ব। কিন্তু মোৰ এটাই আপোনালোকৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা, এইবাৰ যেন কোনোই যেন ভুল নকৰে। সকলোৱে জ্যোতিপ্ৰসাদ দাসক জয়যুক্ত কৰাৰ কাৰণে দিন ৰাত একাকাৰ কৰি যেনেকৈ লাগি আছে আৰু লাগি থাকক, আৰু জয়যুক্ত আমি কৰাবই লাগিব। এইটো আমাৰ প্ৰতিজ্ঞা। সকলোকে মই ধন্যবাদ দিছোঁ, শ্ৰদ্ধা জনাইছোঁ। আৰু এই কেইটা দিন আপোনালোকে প্ৰহৰীৰ দৰে থাকি ইয়াত যেন কোনো বেয়া কাম কৰিব নোৱাৰে, পইচা মিলাব নোৱাৰে, মানুহ মাৰিব নোৱাৰে, সেইবিলাক চাব আৰু জ্যোতিপ্ৰসাদ দাসক জয়যুক্ত কৰিব। এইখিনিকে ক'লো। আৰু এতিয়া জে পি নাড্ডা ডাঙৰীয়া আপোনালোকক বহুত ভাল ভাল কথা ক'ব, আৰু আপোনালোকে কিন্তু আজি প্ৰতিজ্ঞা লৈ যাব ইয়াৰ পৰা, আমি আমাৰ প্ৰাৰ্থী জয় কৰাম বুলি। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ কুইন বাইদেউ। এইখিনিতে এতিয়া আমি আমাৰ জে পি নাড্ডা ডাঙৰীয়াক আমাৰ বকো সমষ্টিৰ ৰাভা জনগোষ্ঠীৰ ৰাইজৰ এক সুন্দৰ নৃত্যৰে আমাৰ অসমৰ সংস্কৃতি আমি দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ। এই নৃত্য আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আমি নগৰমল স্বৰ্গীয়াৰীক দুই এষাৰ ক'বলৈ আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ। এই বকৰ ঐতিহ্যপূৰ্ণ ঐতিহাসিক সুৰে বাকৰিৰ মঞ্চত আৰু একেলগে গান্ধী ময়দানত আয়োজিত হোৱা আমাৰ অতিকে প্ৰিয় বকো সমষ্টিবাসীৰ মৰমৰ প্ৰিয় নেতা, এইবাৰ সন্মিলিত দলৰ আমাৰ অসম গণ পৰিষদ দলৰ হৈ মনোনীত প্ৰাৰ্থী শ্ৰীযুত জ্যোতিপ্ৰসাদ দাস দাদা, অলপ আগতে আমাৰ মাজত আহি পোৱা ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় অধ্যক্ষ জে পি নাড্ডা মহোদয়, আমাৰ অতিকে মৰমৰ সাংসদ গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিৰ আমাৰ শ্ৰদ্ধেয়া কন্যজা বাইদেউ, আমাৰ হাৰিয়ানা আৰু মধ্যপ্ৰদেশৰ পৰা হোৱা শ্ৰদ্ধাৰ সাংসদদ্বয়, ইতিমধ্যে আমাৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ কাৰ্যত সহযোগী হিচাপে থকা সদূৰ মধ্যপ্ৰদেশৰ ইন্দোৰৰ আমাৰ বিধায়ক সুদৰ্শন গুপ্তা ডাঙৰীয়া, ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ শ্ৰদ্ধাৰ বিষয়ববীয়াসকল, অসম গণ পৰিষদ দলৰ শ্ৰদ্ধেয় বিষয়ববীয়াসকল, ৰাভা হাছং যৌথ সংগ্ৰাম সমিতিৰ শ্ৰদ্ধেয় আমাৰ নেতাসকল, মোৰ সতীৰ্থ কাৰ্যবাহী সদস্যসকল,
একেলগে আমাৰ গোটেই বকো ব্লকৰ 11টা জিপিৰ পৰা গৰিষ্ঠ সংখ্যক আমাৰ জাতি বৰ্ণ ধৰ্ম নিৰ্বিশেষে ইয়াত উপস্থিত শ্ৰদ্ধেয় ভোটাৰ ৰাইজসকল, আই মাতৃসকল, জ্যেষ্ঠ ব্যক্তিসকল, আমাৰ চমৰীয়া এলেকাত চমৰীয়া আৰু নগৰবেৰা ZPC এলেকাৰ 15টাকৈ জিপিৰ পৰা কিছু সংখ্যক ইয়ালৈ অহা শ্ৰদ্ধাৰ নেতাসকল, কৰ্মকৰ্তাসকল এই বিশাল নিৰ্বাচনত আমাৰ অংশগ্ৰহণ কৰা নিৰ্বাচনী সভাত অংশগ্ৰহণ শ্ৰদ্ধাৰ আমাৰ সন্মানীয় সাংবাদিক বন্ধুসকল, একেলগে শ্ৰদ্ধেয় ৰাইজ, চমুকে দুআষাৰ কম। আজি আমাৰ সাহস হ'ল বিগত প্ৰায় 12টা দিন ধৰি আমি বকো সমষ্টিৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি আৰু অসম গণ পৰিষদ দলৰ কৰ্মকৰ্তাৰ সহিতে ৰাভা হাছং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ নেতাসকলেও আমি নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ কাৰ্যত অংশগ্ৰহণ কৰিছিলোঁ। আজি ইয়াত এখন বিশাল নিৰ্বাচনী সভা আয়োজন কৰা হ'ল। যোৱাকালি চন্তৰিত এখন বিশাল নিৰ্বাচনী সভা আয়োজন কৰিছিলোঁ, য'ত আমাৰ অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল মহোদয় আছিল। তাতেও প্ৰায় 20,000 মানুহ সমবেত হৈছিল। আৰু আমাৰ টাৰ্গেটতকৈ আজি বিশাল বহুত বেছি জনসাধাৰণ ভোটাৰ ৰাইজ জাতি বৰ্ণ ধৰ্ম নিৰ্বিশেষে আমাৰ মাজলৈ আহিছে। ই আমাৰ কাৰণে শুভ লক্ষণ। আমি সদায় নিৰ্বাচনী ভাষণত কৈছিলোঁ বিগত দিনকেইটাত বকো সমষ্টিত এইবাৰ আমাক চৰকাৰী বিধায়ক লাগে। বিগত 20টা বছৰ যেনেকুৱা ধৰণে বকো সমষ্টিৰ আমি ক্ষতি হ'ল, সদায় আমি বকো সমষ্টি ভোটাৰ ৰাইজে বিৰোধী দলত সেই চুকত বহিবৰ কাৰণে ইয়াৰ পৰা বিধায়িকা পঠাই আছিলোঁ। এইবাৰ নহ'ব সংকল্প লৈছিলোঁ বিভিন্ন সভামতে, হয়নে নহয় ৰাইজ? চৰকাৰী বিধায়ক লাগিব এইবাৰ। বিজেপিৰ নেতৃত্বত সন্মিলিত মিত্ৰ শক্তিৰ চৰকাৰ হ'ব, এয়া বিশ্বাস আমি কৰোঁ। আৰু ইয়াৰ ইতিমধ্যে নিশ্চিত হৈছে যোৱাকালিলৈকে হোৱা 2টা পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনত। গতিকে আমাৰ বকোবাসী ৰাইজে এইবাৰ দলৰ অৰ্থত গৈ পেলাই আমাৰ বিধায়ক আমি নিৰ্বাচিত কৰিম। আমাৰ বিধায়ক কোন হ'ব? আমাৰ সকলোৰে পৰিচিত জ্যোতিপ্ৰসাদ দাসদেৱ। এয়া ৰাভা হাছংবাসী ৰাইজৰ কথা, আমাৰ বকো সমষ্টিৰ চৰ চাপৰি ৰাইজৰ কথা, হয়নে নহয়? গতিকে দীঘলীয়া বক্তব্য নাৰাখো, চুটিকে কম, জ্যোতিপ্ৰসাদ দাস আমাৰ দাদা জিকিবই। বিজেপি AGP যৌথ সংগ্ৰাম সমিতি আহি থকা দিনত আমাৰ এখন চৰকাৰ আৰু জনসাধাৰণৰ মাজত সেইটো হ'ব। সেয়াই হ'ল আমাৰ মৰমৰ বিধায়ক জ্যোতিপ্ৰসাদ দাস। ধন্যবাদ সকলোকে। ধন্যবাদ স্বৰ্গীয়। এতিয়া মই আমাৰ বাৰেৰহণীয়া ৰাভা কৃষ্টি সংস্কৃতি মই আমাৰ মাননীয় অধ্যক্ষ শ্ৰীযুত JP নাড্ডা ডাঙৰীয়াৰ আগত পৰিৱেশন কৰিবলৈ মই অনুৰোধ জনাইছোঁ। এয়া আমাৰ মঞ্চত ৰাভা নৃত্য পৰিৱেশন কৰিব আমাৰ বকো সমষ্টিৰ ৰাভা ভাই ভনীসকলে। মই এটা অনুৰোধ জনাম আমাৰ নৃত্যশিল্পীসকলক, যিহেতু নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ কাৰণে আমাৰ অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া খুবেই ব্যস্ত হৈ আছে, তেওঁলোকে যাতে এই নৃত্যটো অতি চমুৱাই দিয়ে। ধন্যবাদ। Sakai sungi dinda kai riba, riba 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 pui riba. Sakai sungi dinda kai riba.
bakinaina Anoy na hasuna kasi bakinaina Sakayan hamzal bona Sakayan hamzal bona Anoy na hasuna kasi bakinaina Anoy na hasuna kasi bakinaina Sakayan hamzal bona Sakayan hamzal bona Hur 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 say Haba hasubo nasime Panbirita nasime Haba hasubo nasime Panbirita nasime Kore bakurai men kangka godang rai men Ham jarum bona Ham jarum bona Haba hasubo nasime Panbirita nasime Haba hasubo nasime Panbirita nasime Kore bakurai men kangka godang rai men Ham jarum bona Ham jarum bona Hur 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 say Pui pui Ham jari kamirana Pui pui Ham jari kamirana Pui pui Ham jari kamirana Hur 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 say Hur 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 say Mai sari puna masi sari puna Rarang ragota donga Hirang pinggota donga Ham jari kamirana Mai sari puna masi sari puna Rarang ragota donga Hirang pinggota donga Ham jari kamirana Hur 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 say Don saradonga ban saradonga Habaku sandonga kami ku sandonga Nihasani urgino wawasani urgino Ham jari kamirana Ham jari kamirana Don saradonga ban saradonga Habaku sandonga kami ku sandonga Nihasani urgino wawasani urgino Ham jari kamirana Ham jari kamirana Hur 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 say Dede sakayan Mai masitana Gabul soni sona ganda Mai dogonua Borong karang singane kene bensito noa Dede sakayan Mai masitanga Gabul soni sona ganda Mai dogonua Borong karang singane kene bensito noa Hur 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 say Haba hasu ham jari masih dagua Si memai kanua Pasi sake kamira kai tebe manua Si betebe manua Buki buki soke si menu kirangoa Si menu kirangoa Baina panti urgi mene sakai sonoa Umandai sapai pinua Hur 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 say Pui pui Sakayan nukinarenga Pui pui Sakayan nukinarenga Pui pui Sakayan nukinarenga
কিনাৰেঙা ধন্যবাদ সকলোৱে হাত তালি দিয়ক এতিয়া মই আমাৰ বকো বিধানসভা সমষ্টিৰ আমাৰ মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী আমাৰ অতি মৰমৰ নেতা জ্যোতিপ্ৰসাদ দাস ডাঙৰীয়াক ৰাইজক উদ্দেশ্যি দুই এষাৰ ক'বলৈ অনুৰোধ জনাইছো ধন্যবাদ ভাৰতীয় পাৰ্টি জিন্দাবাদ 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 এজিপি জিন্দাবাদ ৰাভা হাছং যৌথ সংগ্ৰাম জিন্দাবাদ ইউপিপিএল জিন্দাবাদ মই ভাষণ ৰখাৰ আগত আপোনালোকক সকলোকে মোৰ অন্তৰৰ পৰা শ্ৰদ্ধা আৰু প্ৰণাম জনাইছো আজিৰ আমাৰ যি নিৰ্বাচনৰ সভা এই নিৰ্বাচনৰ সভাখনত উপস্থিত হৈছে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি জেপি নাড্ডা ডাঙৰীয়া তেখেতৰ লগত সহযোগ কৰিছে আপোনালোকে চিনি পোৱা ৭ নম্বৰ গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিৰ আমাৰ সাংসদ কুইন ওজা বাইদেউ আৰু মঞ্চ থকা আমাৰ মধ্যপ্ৰদেশ আৰু হাৰিয়ানাৰ পৰা অহা সাংসদ আৰু বিধায়ক ডাঙৰীয়া আৰু আমাৰ ইয়াত স্থানীয়ভাৱে থকা ৰাভা হাছং যৌথ সংগ্ৰাম পৰিষদৰ এক্সিকিউটিভ মেম্বাৰ আৰু জেনেৰেল মেম্বাৰসকল আৰু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ অসম গণ পৰিষদ দলৰ ৰাভা হাছং যৌথ সংগ্ৰাম পৰিষদৰ আৰু ইউপিপিএল দলৰ আমাৰ বিষয়ববীয়াসকল আৰু সন্মানীয় ৰাইজ সকলোকে মই আন্তৰিক শ্ৰদ্ধা জনাইছো বৰ্তমান নিৰ্বাচনৰ সময় আৰু নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰ কাৰ্য চলি আছে যে নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব এপ্ৰিল মাহৰ 6 তাৰিখে তৃতীয় পৰ্যায়ৰ এই তৃতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনত আমি সকলোৱে অংশগ্ৰহণ কৰিছো আজি ইয়াত আমি বিশাল সভা পাতি আমি বুজাই দিব পাৰিছো আপোনালোকে বুজাই দিব পাৰিছে যে এইবাৰ মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে মোক আপোনালোকে সমৰ্থন কৰি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ নেতৃত্বত অসমত চৰকাৰখন গঠনৰ কাৰণে আপোনালোকে আগবাঢ়ি আহিছে এই বিপুল সমাৱেশে আজি কি বুজাইছে যে বকো সমষ্টিত মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে আমি জয়যুক্ত হ'ব পাৰিম বুলি আপোনালোকে ইংগিত দিছে চিনাকি দিবলৈ পাৰিছে আজি মোৰ কাৰণে মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থীৰ কাৰণে আজি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ সন্মানীয় ৰাষ্ট্ৰীয় অধ্যক্ষ জেপি নাড্ডা ডাঙৰীয়া আপোনালোকৰ মাজত আহিছে ইয়াতকে আৰু কি ডাঙৰ কথা হ'ব লাগে তেখেতৰ সন্মানৰ কাৰণে মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থীৰ সন্মানৰ কাৰণে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ সন্মানৰ কাৰণে অসম গণ পৰিষদ দলৰ সন্মানৰ কাৰণে ৰাভা হাছং যৌথ পৰিষদৰ সন্মানৰ কাৰণে আৰু ইউপিপিএল দলৰ সন্মানৰ কাৰণে আপোনালোকে যাতে হাতীৰ ছবিত 6 এপ্ৰিল তাৰিখে ভোট দি পেলাই আমাক জয়যুক্ত কৰি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ অসমত যাতে চৰকাৰ গঠন কৰে তাৰ কাৰণে মই আহ্বান জনালো যোৱা 5 বছৰ বিধায়ক আছিল কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰখন অসমত হ'ল সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াৰ বিজেপি চৰকাৰ দুইটা বস্তু নিমিলিল বিৰোধীত থাকিলো আমাৰ আপোনালোকৰ নিচিনা ৰাইজে বকো সমষ্টিৰ ৰাইজে বিৰোধী পক্ষত থাকিল আৰু সেই বিৰোধী পক্ষত থকা কাৰণে উন্নতিৰ মুখখন দেখিবলৈ নাপালে উন্নতি নহল গতিকে এইবাৰ আমি আবেদন জনাইছো এইবাৰ 2021 চনৰ নিৰ্বাচনৰ 6 এপ্ৰিল তাৰিখে আপোনালোকে যাতে ভুল নকৰে আৰু আপোনালোকৰ কাষত থকা ৰাইজে যাতে ভুল নকৰে তাৰ কাৰণে মই বিনম্ৰভাৱে অনুৰোধ জনালো 6 এপ্ৰিল তাৰিখে নিজৰ ভোট গ্ৰহণ কেন্দ্ৰত আপোনালোকে সোমাই যেতিয়া ভোট গ্ৰহণ কেন্দ্ৰত ভোট দিবলৈ যাব 2 নম্বৰ স্থানত দ্বিতীয় স্থানত হাতীৰ ছবিৰ প্ৰতীকটো দেখিবলৈ পাব তাত পদুম ফুলৰ ছবিৰ প্ৰতীকটো দেখিবলৈ নাপায় সেই বুলি আপোনালোকে ভোট নিদিয়াকে গুছি নাহিব হাতীৰ ছবিত ভোট দিলে দিছপুৰত বিজেপিৰ চৰকাৰখন হ'ব হয় না কথাটো যদি বিজেপি চৰকাৰখন হয় মই কি হ'ম চৰকাৰী বিধায়ক হয় না কথাটো যদি চৰকাৰী বিধায়ক হয় তেতিয়াহ'লে উন্নতিৰ ধাৰাবাহিকতা আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব চৰকাৰৰ গোটেই আঁচনি
যিমান আঁচনি আছে ইতিমধ্যে 5 বছৰত আপোনালোকে যি আঁচনি পাইছে তাতকে বহুখিনি বৃদ্ধি হৈ পেলাই আপোনালোকে সেই আঁচনিবিলাক দেখিবলৈ পাব। মই প্ৰাৰ্থী হিচাপে 26টা গাঁও পঞ্চায়তৰ এলেকাত চুকে কোণে সভা কৰোঁতে ৰাইজে স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে মোক লগ পাবৰ কাৰণে আহি আমাক খোলাখুলিকে প্ৰকাশ কৰিছে, কোনো লোকঢাক নাই। সাধাৰণতে নিৰ্বাচনত ভোটদাতা ৰাইজে গোপনকে থাকে, কিন্তু এইবাৰ গোপনতা নাই। তেওঁলোকে খোলাখুলিকে কৈছে যে এইবাৰ আমাক অৰ্থাৎ মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থীক হাতীৰ ছবিত ভোট দি বিজেপি চৰকাৰখন পাব বিচাৰিছে, বিজেপি চৰকাৰখন পাব বিচাৰিছে। গতিকে বকো সমষ্টিত যদি উন্নতি হ'ব লাগে আপোনালোকে মুঠেও বেলেগ নকৰি পেলাই হাতীৰ ছবিত ভোট দিয়ক বুলি মই আশা কৰিলোঁ। ইয়াৰ পিছত আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি ডাঙৰীয়াই তেখেতৰ ভাষণত বকো সমষ্টিৰ উন্নয়নৰ কাৰণে, অসম ৰাজ্যৰ উন্নয়নৰ কাৰণে, ভাৰতবৰ্ষৰ উন্নয়নৰ কাৰণে তেখেতসকলে যি ক'বলগীয়া কথাখিনি ধুনীয়াকৈ বুজাই দিব বুলি মই আশা কৰিম। নিৰ্বাচনৰ সময় যিহেতু ছুটি বা বেছি সময় নাই, আমি দীঘলীয়া সময় বক্তৃতা ৰাখি লাভ নাই। তেখেতক আমি ভাষণ ৰাখিবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাম। তাৰপিছত পৰৱৰ্তী তেওঁ কাৰ্যসূচী আছে তালৈকে যাব। গতিকে আহক আমি 2,36,663 এই ভোটাৰৰ ভিতৰত আমি যাতে 1.5 লাখতকৈ অধিক ভোট পাবৰ কাৰণে সমৰ্থ হওঁ, তাৰ কাৰণে আপোনালোকে চেষ্টাটো কৰি দিয়ক। যোৱাবেলিকা 5 বছৰ কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে বিধায়ক আছিল, আৰু বিধায়ক থাকি পেলাই আপোনালোকক কি ধৰণে ব্যৱহাৰ কৰিছে, কি কি কাম কৰিছে আপোনালোকৰ মাজত হিচাপ আছে। গতিকে তাৰ প্ৰতিশোধ ল'বৰ কাৰণে, কংগ্ৰেছৰ সেইগৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ ওপৰত প্ৰতিশোধ ল'বৰ কাৰণে আপোনালোকে আজিৰ পৰা 6 তাৰিখলৈকে যিকেইটা দিন বাকী আছে সেই দিনকেইটা দিনে নিশাই পৰিশ্ৰম কৰি ঘৰে ঘৰে সোমাই হাতী ছবিত ভোট দিবৰ কাৰণে অনুৰোধ কৰিব বুলি মই আশা কৰিলোঁ। মোৰ মনত স্বপ্ন আছে বকো বিধানসভা সমষ্টিটো ধুনীয়াকৈ সজাই পৰাই ল'বৰ কাৰণে। আমাক কি কি লাগে? বকো সমষ্টিত ভাল এখন মেডিকেল লাগে, নহয় জানো? ভাল শিক্ষানুষ্ঠান লাগে, ভাল খেলপথাৰ লাগে। মই বেছি দীঘলীয়া নকওঁ, তেখেতৰ কাৰ্যসূচী আছে, নহ'লে আমি বহুত সময় ক'ব পাৰিলোঁ হয়। গতিকে বেছি সময় নকয়, 6 এপ্ৰিল তাৰিখে আপোনালোকৰ বহুমূলীয়া ভোটটো দ্বিতীয় স্থানত থকা, ভোট গ্ৰহণ কেন্দ্ৰৰ দ্বিতীয় স্থানত থকা হাতীৰ ছবিত দি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ চৰকাৰখন গঠন কৰক বুলি আহ্বান জনাই মোৰ ভাষণ সমাপ্ত কৰিছোঁ। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ দাদা। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, এইটো নাৰা কাৰ হয়? বিশ্বৰ বৃহত্তম दल भारतीय जनता पार्टी। अभी मैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री जेपी नड्डा जी को अपना भाषण रखने के लिए मंच में स्वागत करता हूं। ये मंच में जेपी नड्डा जी। आज के इस चुनावी जनसभा में मेरे साथ उपस्थित हमारी गुवाहाटी की लोकप्रिय सांसद बहन क्वीन ओझा जी, आप सबके, हम सबके बहुत ही प्रिय प्रत्याशी श्री ज्योति प्रसाद दास जी, हमारे धनेश्वर तालुकदार जी जो जिला के अध्यक्ष हैं, श्री कर्णा भूषण राभा जी जो एजीपी के प्रदेश कार्य समिति के सदस्य हैं, संजय भाटिया जी सांसद, अनिल फिरोजिया जी, और हमारे नीलोत्तम जी, हमारे सभी वरिष्ठ सम्मानित कार्यकर्ता,
सम्मानित मंच और यहां इतनी बड़ी संख्या में एकत्र आए माताएं, बहनें, बुजुर्ग, नौजवान साथी और मेरे मीडिया के मित्र, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के सदस्य, आज मैं यहां पर इस बोको के विधानसभा क्षेत्र में आया हूं और आप सब लोगों ने इतनी बड़ी संख्या में आकर के इस सभा को एक संदेश दिया है कि आपने जैसे तय कर लिया हो कि इस विधानसभा से ज्योति प्रसाद जी को चुनाव जिता करके आपने विधानसभा में भेजना है। आपकी तालियों की गड़गड़ाहट इस बात को बताती है कि आपने अपना मन बना लिया है कि आप इस चुनाव में ज्योति प्रसाद जी को आशीर्वाद देंगे। मैं यहां आया हूं तो हमारे स्थानीय मंदिर पार्वती मंदिर को नमन करता हूं, उसी तरीके से चमरिया क्षत्र को भी नमन करता हूं। ये यहां की सांस्कृतिक धरोहर है और हम सबको संस्कृति के प्रति प्रेरणा देती है। मैं जब अभी आपका हमजार डांस देख रहा था तो मैंने एक बात मन में सोची कि आप लोग हम नेताओं के साथ कितना अन्याय करते हैं। अन्याय ऐसे करते हैं कि एक तरफ तो आप सांस्कृतिक वातावरण बनाते हैं और दूसरी तरफ हम जैसे लोगों को वीर रस में चुनाव की लड़ाई का आह्वान करने के लिए कहते हैं। अब दोनों में बड़ा अंतर होता है। मैं आया यहां सांस्कृतिक हमजार डांस देखा, किस तरीके से दाव लेकर के, कुठार लेकर के, हमारे लुंखी को लेकर के हमारे भाई बहन ने इस डांस को किया। मैं उनको बधाई देना चाहता हूं, लेकिन मैं सांस्कृतिक माहौल से निकलकर वीर रस में राजनीति की बात करूं, यह मेरे लिए कठिन हो जाता है, क्योंकि असम की संस्कृति ही इतनी प्यारी है कि उसमें डूब जाओ तो निकलना मुश्किल होता है। लेकिन अब मुझे करना पड़ेगा, मुझे भी कुछ चार चुनाव की बातें करनी पड़ेंगी। मित्रों, यह चुनाव एक तरफ कांग्रेस है, AIUDF है, एक तरफ CPM है और एक तरफ हमारे भारतीय जनता पार्टी है हमारी, और हमारा UPPL है और हमारे AGP के साथी हैं जिसमें ज्योति प्रसाद यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। मित्रों, ये चुनाव में हमारे विरोधी जो हैं, मैं उनको देखता हूं तो मैं कहता हूं कि वो अवसरवादी के शिकार हैं, अवसरवादिता के शिकार हैं, पॉलिटिक्स ऑफ अपॉर्चुनिज्म। और दूसरा, कांग्रेस पार्टी हैज बिकम मेंटली बैंकरप्ट, मानसिक दिवालियेपन की तरफ चली गई है। अब राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यह वक्तव्य आए तो आपके मन में तो प्रश्न होगा ही ना कि ये राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या बोल रहा है। मानसिक दिवालियापन कांग्रेस को, 100 साल से ज्यादा जिसका इतिहास, 120 साल से ज्यादा जिसका इतिहास। मैं इसलिए कह रहा हूं कि इस समय चुनाव हो रहे हैं, चुनाव बंगाल में भी हो रहे हैं, चुनाव केरल में भी हो रहे हैं, चुनाव असम में भी हो रहे हैं। तीनों जगह एक साथ चुनाव हो रहे हैं। केरल में कांग्रेस CPM के खिलाफ लड़ रही है, बंगाल में कांग्रेस गले मिलकर के CPM के साथ चल रही है, और आसाम में गले लगा करके कांग्रेस CPM के साथ चल रही है। ये उसके मानसिक दिवालियेपन का नतीजा है। ये बताता है कि कांग्रेस का चेहरा सिर्फ सत्ता में आने का है, लोगों की सेवा, वैचारिक पृष्ठभूमि, ये सारी चीजें बिल्कुल नदारत है, इसका कोई अर्थ नहीं। मित्रों, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, राजनीतिक कार्यकर्ता, राजनीतिक दृष्टि से एक्टिविस्ट होना
और पॉलिटिकल टूरिस्ट होने में अंतर है। मैं जब कांग्रेस पार्टी की बात करता हूं तो मैं हमेशा कहता हूं कि ये पॉलिटिकल सैलानी हैं। जब चुनाव आते हैं तो फोटो सेशन के लिए आ जाते हैं, चुनाव में फोटो खिंचाते हैं, टाटा करते हैं, भाषण देते हैं, चले जाते हैं। इनको कोई जमीन से लेना देना नहीं है, कोई जानकारी नहीं है। और मैं फिर पूरे जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं, मैं जिम्मेवारी के साथ इसलिए कह रहा हूं कि राहुल गांधी आते हैं, फेसबुक पर, डिजिटल मीडिया पर अपनी तस्वीर छापते हैं, आगे खड़े, और पीछे जो तस्वीर है वो चाय के बागान की है। जब मैं पता करता हूं तो पता चलता है कि चाय का बागान भारत का नहीं है, ताइवान के चाय बागान के आगे खड़े हैं राहुल गांधी। अगर मैं बात करूं दूसरी फोटो की तो श्रीलंका का चाय बागान और आगे राहुल गांधी, यानी इनको असम का चाय बागान का फोटो भी नहीं मिलता, फोटो भी विदेशी ढूंढते हैं और देसी नेता बनकर के आगे खड़े हो जाते हैं। ये है पॉलिटिकल टूरिस्ट, इसको हमको समझना चाहिए। बहन आती हैं, वो फोटो खिंचाती हैं चाय बागान में पत्ते तोड़ते हुए, पत्तियां तोड़ते हुए। उनको मालूम ही नहीं है कि मार्च महीने में पत्ते नहीं तोड़े जाते, वो कच्चे होते हैं, वो सूखे नहीं होते। पत्तियां अप्रैल के बाद तोड़ी जाती हैं। जिसको ये नहीं मालूम वो आपकी सेवा के लिए चले आए हैं, आप क्या जवाब देंगे? हमारे तरफ से कहा गया, हमारे तरफ को कहा गया कि इनको चाय के बागानों की चिंता नहीं थी। मैं चाय के बागान की यहां इसलिए चर्चा कर रहा हूं, मुझे मालूम है कि यहां चाय के बागान नहीं है, लेकिन मैं इसलिए चर्चा कर रहा हूं क्योंकि आप लोग राजनीतिक दृष्टि से बड़े सूझबूझ वाले हैं और आपका बताया हुआ रास्ता सारा आसाम लेता है, उसको संदेश जाता है, इसलिए मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं। मित्रों, चाय के बागीचे के लिए पूरी योजना बना करके 8,000 रुपए, 8 लाख चाय के हमारे जो चाय बागान में काम करने वाले लोग थे उनको पहुंचाने का काम किसने किया? उसको पहुंचाने का काम सर्बानंद सोनोवाल जी की सरकार ने किया। 8 लाख चाय बागीचे में काम करने वाली बहनों को 8,000 रुपए का चाय बागीचार दान पुरस्कार का कार्यक्रम लिया गया। प्रसूति वाली महिलाएं जिनके पेट में बच्चा रहा, जिन्होंने प्रसूति करना था, उनके जॉब का लॉस होना था, किसी ने नहीं चिंता की। यह कांग्रेस पार्टी 40 साल से बैठी नहीं, एक बार भी चर्चा नहीं की। ये सर्बानंद सोनोवाल जी का इंतजार कर रहे थे, ये हेमंत बिश्व शर्मा जी का इंतजार कर रहे थे, ये ज्योति बाबू का इंतजार कर रहे थे, जिन्होंने कानून बना करके महिलाओं को प्रसूति अवस्था में 12,000 रुपए देने का तय किया और अब 18,000 रुपए देने का तय किया। इनको मालूम ही नहीं, ये जिस सड़क से हमारी नेत्री और नेत्र भाई बहन चाय के बागीचे में गए, ये सड़क पक्की सर्बानंद सोनोवाल ने बनाई थी। जमीन के है ही नहीं, जमीन की जानकारी नहीं। उसी तरीके से मोदी जी ने 1,000 करोड़ रुपए चाय के बगीचे के लिए दिया है, महिलाओं के, बच्चों के हेल्थ के लिए, शिक्षा के लिए, महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए इस तरीके की व्यवस्था की गई है। आप बताइए, हमारा ये इलाका पास का लगता हुआ ब्रह्मपुत्र की ट्रेजेडी यहां आती है कि नहीं आती? ब्रह्मपुत्र की त्रासदी आती है कि नहीं आती है? हमारी सरकार ने 10 संकल्प लिए हैं, उसमें से पहला संकल्प है कि हमारी सरकार आएगी और आपके आशीर्वाद से आएगी और ज्योतिर्भाई के सहयोग से आएगी, और उस सरकार के आने के बाद हम इस ब्रह्मपुत्र की फ्लड की ट्रेजेडी को रोकेंगे, सैटेलाइट से मॉनिटर करेंगे और यहां पर पॉन्ड और रिजर्वायर बना करके, पोखर बना करके और रिजर्वायर बना करके उनको रोकने का काम करेंगे और उस पानी का सदुपयोग करेंगे। ये हम करने वाले हैं। आप बताइए, महिला सशक्तिकरण अरुण उदय से हुआ कि नहीं हुआ? महिलाओं का हुआ कि नहीं हुआ? महिलाओं का उदय, चिंता हुई कि नहीं हुई? अब हम लोग 3,000 रुपए 30 लाख बहनों को अरुण उदय के तहत देने वाले हैं, ताकि
वह बच्चों की शिक्षा, दीक्षा, पढ़ाई, दवाई, इन सब की चिंता कर सके, ये हम करने वाले हैं। नामघर और क्षत्र के लिए 2.5 लाख रुपए देने वाले हैं, ताकि उनका नामघर का कीर्तन घर बने, पूजा घर बने, और 2.5 लाख रुपए लगभग 12,000 नामघरों को दिया जाएगा। यहां के भी नामघर के विकास के लिए ज्योतिबाई लगे थे कि नहीं लगे थे? लगे थे कि नहीं लगे थे? इनको आशीर्वाद मिलना चाहिए, ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। बहनों की शिक्षा के लिए 8 क्लास के बाद साइकिल की व्यवस्था और मुफ्त शिक्षा देने की बात हमने कही है। डिलिमिटेशन के बाद आपको अधिकार मिलेगा वोट देने का ठीक ढंग से, और डिलिमिटेशन के साथ साथ हम लगभग हर साल 2 लाख लोगों को नौकरी देंगे, और 1 साल बाद यानी 2022 के मार्च महीने तक 1 लाख लोगों को नौकरी, नौजवानों को लगाएंगे, ये हमने संकल्प दिया है। इस 5 सालों में लगभग 10 लाख लोगों को नौकरी देने वाले हैं, और लगभग 2 लाख लोगों को विवेकानंद के स्वरोजगार योजना के तहत हम उनको जोड़ने वाले हैं और उनको एम्प्लॉयमेंट देने वाले हैं। गांव में किसानों के लिए उनकी खेती बढ़े, आत्मनिर्भर हो, पोल्ट्री बढ़े, पिगरीज बढ़े, इन सब की भी चिंता करने का काम हम लोगों ने उठाया है। ये 10 संकल्प लेकर के हम चले हैं। मित्रों, हम भारत के, असम की संस्कृति की रक्षा करने वाले लोग हैं, और जब हम ये कहते हैं, अब मुझे कुछ लोगों ने कहा कि कोई दूसरा व्यक्ति असम की पहचान है। अरे असम की पहचान होगा तो गोपीनाथ बोरदोलोई होंगे, असम की पहचान होगा तो भूपेंद्र हजारिका होंगे, ये हमको समझना चाहिए। और इसलिए हमारे अटल बिहारी वाजपेयी भारत के प्रधानमंत्री थे। जब गोपीनाथ बोरदोलोई को भारत रत्न दिया गया, क्यों नहीं याद आई किसी कांग्रेसी नेता को? क्यों इंतजार करते रह गए अटल बिहारी वाजपेयी के भारत के प्रधानमंत्री बनने की? जब नरेंद्र मोदी बने भारत के प्रधानमंत्री, तो भूपेंद्र हजारिका को भारत रत्न देने का काम किया तो नरेंद्र मोदी जी ने किया, यह हमको ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए असम की संस्कृति की रक्षा और चिंता की है तो भारतीय जनता पार्टी के नेता, भारत के प्रधानमंत्री, पहले अटल जी और बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की है, यह हमको ध्यान में रखना चाहिए। आप बताइए, हमारे माधव कला केंद्र जिसके लिए 48 करोड़ रुपए दिए गए, ये क्यों मोदी जी का इंतजार कर रहा था? पहले कांग्रेसियों ने क्यों नहीं दे दिया? ये हमारा श्रीमंत शंकर देव जी के जन्म स्थान के लिए 188 करोड़ रुपए उसके विकास के लिए देने के लिए क्यों बीजेपी का इंतजार करना पड़ा? क्यों एजीपी का इंतजार करना पड़ा? वो इसलिए इंतजार करना पड़ा क्योंकि ये हम ही लोग हैं जो असम की संस्कृति की रक्षा करते हैं और असम की संस्कृति की चिंता करते हैं, ये हमको समझना चाहिए। मैंने पहले कहा कि नामघरों के लिए 2.5 लाख रुपए देना, क्षत्र के लिए अलग से पैसे देकर के उनका विकास करना, उनकी जमीन इंक्रोचमेंट से छुड़वाना, ये हमारा काम है। इसको हमने पूरा करने का संकल्प लिया है। मित्रों, मैं यहां आया हूं, मुझे अभी राभा के नेतृत्व ने अपना वक्तव्य दिया। हमारे बोडो के बहुत बड़े लोग यहां पर उपस्थित हैं और बड़ी संख्या में बोडो ट्राइब से संबंध रखने वाले लोग हैं। 50 साल से बोडोलैंड, बोडो ट्राइबल रीजन के लिए आप लड़ाई लड़ रहे थे। 50 इयर्स, मैं सही बोल रहा हूं क्या? 50 साल से लड़ रहे थे कि नहीं लड़ रहे थे? 50 साल से लड़ रहे थे कि नहीं लड़ रहे थे? 50 साल से आपकी लड़ाई चल रही थी, हजारों लोग मारे गए, एक भी कांग्रेस पार्टी ने कोई भी इनिशिएटिव नहीं लिया, हजारों लोग मारे गए। ये नरेंद्र मोदी जी की इच्छा शक्ति और अमित शाह जी की रणनीति थी कि हमने असम की अस्मिता को भी बचाया और बोडोलैंड की आकांक्षाओं को भी, बोडो की आकांक्षाओं को भी पूरा करके दिया। ये बात हम आपसे कहना चाहते हैं। और इसके लिए मुझे याद है कितनी दौर की बातचीत हुई। 4000 से ज्यादा लोगों ने असॉल्ट राइफल सरेंडर किया। असॉल्ट राइफल सरेंडर करने का मतलब है, 4000 का मतलब है असम में अमन, चैन, शांति।
2,500 से ज्यादा लोगों ने आत्मसमर्पण किया। सेटलमेंट में 4 लाख रुपए वन टाइम सेटलमेंट दिया गया। 6,000 रुपए 3 साल के लिए उनको फिर से पुनर्वास के लिए दिया गया। 1,500 करोड़ रुपए लगा करके बोडो के कार्यकर्ताओं को, बोडो के नेताओं को, बोडो को मुख्य धारा में शामिल करने का काम किया। तो मोदी जी ने किया और उसको क्रियान्वित किया तो अमित शाह और सर्बानंद सोनोवाल जी ने किया। यह हमको ध्यान में रखना चाहिए। एक बहुत बड़ा काम हुआ है। और उसी तरीके से सिक्योरिटी की दृष्टि से अब अगर मैं यहां के विकास की बात करूं, आप बताइए जितनी सड़कें बनी हैं वो सर्बानंद सोनोवाल जी के समय में बनी है कि नहीं बनी है? जितने ब्रिज बने वो बने हैं कि नहीं बने? हर तरीके से काम हुआ है तो मोदी जी के टाइम पर हुआ है। 35 बार मोदी जी असम में आए हैं, 35 बार। आपने प्रधानमंत्री चुना मनमोहन सिंह को, पूरे मिलाकर के 10 साल में 10 बार भी नहीं आए होंगे। और मोदी जी 5 साल के अंदर 35 बार आए हैं और इस इलाके का विकास किया है। वो हमको ध्यान में रखना चाहिए। उसी तरीके से गैस की रॉयल्टी, मनमोहन सिंह जी आजकल बोलते हैं कि मैं यहां से प्रधानमंत्री रहा इसलिए असम के लोग कांग्रेस को वोट दें। अरे उनको तो असम की जनता का धन्यवाद देना चाहिए कि आप जैसे को प्रधानमंत्री बना करके 10 साल देखा। ये नरेंद्र मोदी जी हैं जिन्होंने गैस की रॉयल्टी एक हफ्ते के अंदर 8,000 करोड़ रुपए असम की जनता को दिया। ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। 8,000 करोड़ रुपए। सड़कों में जाल बिछाया, 11,500 किलोमीटर की सड़कें बनी हैं। 40,000 करोड़ रुपए गैस के इंफ्रास्ट्रक्चर और रिफाइनरी के लिए खर्च हो रहे हैं। उसी तरीके से गुवाहाटी बोरदोलोई, गोपीनाथ बोरदोलोई एयरपोर्ट के लिए 1,232 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। नया इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बिल्डिंग बन रही है। बांस की इंडस्ट्री के लिए अलग से 75 हेक्टेयर की भूमि लेकर के और 50 करोड़ रुपए खर्च होकर के बैम्बू की इंडस्ट्री बन रही है। स्वच्छ भारत मिशन में लगभग 59 लाख 59 लाख ऐसे हमारे टॉयलेट्स बने हैं। उज्ज्वला योजना में 36 लाख लोगों को गैस का सिलेंडर मिला है। यहां देख रहा हूं मैं महिला शक्ति इतनी बड़ी संख्या में बैठी है। यह महिलाओं की सशक्तिकरण का काम अगर किसी ने किया है तो वो नरेंद्र मोदी जी ने किया है। यह हमको समझना चाहिए। उज्ज्वला योजना, उजाला योजना, सौभाग्य योजना, आयुष्मान भारत, ये सब, ये स्वच्छता अभियान, ये इज्जत घर, महिलाओं को जितनी ताकत मोदी जी ने दी है उसका जितना भी गुणगान किया जाए वो कम है। उन्होंने मुख्य धारा में शामिल करने के लिए हर तरीके के प्रयास किए ताकि आप उसमें अपने आप को जोड़ सकें, शामिल कर सकें। हमारे गरीब लोगों को जमीन की मलकियत नहीं मिलती थी, पट्टा नहीं मिलता था। 3.5 लाख लोगों को पट्टा दे दिया गया है। और अब कोई भी जो बिना जमीन के होगा उसको मलकियत और पट्टा दिया जाएगा। यह संकल्प हमारे लोगों ने लिया है जिसको हमको समझना चाहिए। मित्रों, चाहे हाई स्कूल हो, चाहे हेल्थ हो, चाहे विकास के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर हो, हर तरीके से इस इलाके के विकास के लिए हम कटिबद्ध रहे हैं। हमने उसको बढ़ाने का प्रयास किया है, उसको हमने आगे बढ़ाने का प्रयास किया। मित्रों, जब मैं यहां आया हूं तो एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं। मैंने आपको बताया कि कुल मिलाकर के यहां पर ये जो स्वच्छता अभियान था उसमें लाखों लोगों को, लगभग 59 लाख लोगों को इज्जत घर बना। इसी तरीके से 36 लाख लोगों को गैस के कनेक्शन मिले। इसी तरीके से आयुष्मान भारत में लोगों को जोड़ा। ये हमारी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी, जिसने कभी भी किसी को विकास के नाम पर, धर्म पर नहीं बंटने दिया है। विकास किया है तो सबका विकास किया है, सबका साथ लिया है और सबका विश्वास अर्जित किया है। यह सच्चाई बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? हमको समझना होगा। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। और आज ज्योति बाबू जो यहां हमारे चुनाव में प्रत्याशी हैं, हमको मालूम है कि 96 में भी एमएलए रहे आप, 2006 में भी आप एमएलए रहे। आपने लंबे समय तक विकास का काम किया है। हमारे
चामरिया क्षेत्र की बाउंड्री वॉल बनाई है। 50 लाख रुपए स्पेशल स्कीम के तहत आपने लिया है। ग्राम सड़क योजना के 326 रोड्स बनाए हैं, 89 ब्रिजेस बनाए हैं, 610 करोड़ रुपए खर्च किया है। बोको के हकीम रोड के लिए 16 किलोमीटर की सड़क कंप्लीट की है। एक विकास की नई गाथा लिखी है, यह इन्होंने किया है, यह मैं आपसे कहना चाहता हूं। मित्रों, इनके नेतृत्व में हम शिक्षा की चिंता करेंगे, हम खेल के लिए इसको एक स्थान बनाएंगे, हम सांस्कृतिक प्रयोजन को आगे बढ़ाएंगे और उसके साथ साथ पानी और स्वास्थ्य की व्यवस्था भी करेंगे और पर्यटन को विकास के लिए जोड़ेंगे और जनजाति के विकास के लिए हम कटिबद्ध रहेंगे। इन सारी बातों के लिए हम कटिबद्ध होकर के काम करेंगे। ये ज्योति बाबू की तरफ से मैं विश्वास दिलाता हूं, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, संस्कृति हो, पानी की स्वास्थ्य व्यवस्था हो और उसी के साथ साथ जनजाति का विकास हो, सारे काम को ज्योति बाबू आगे बढ़ाएंगे और इसलिए ज्योति प्रसाद दास जी को समर्थन करना हमारी जिम्मेवारी बनती है। मेरा पूरा विश्वास है कि आप सब लोग आगे बढ़ेंगे और इस काम में आगे बढ़ करके अपना योगदान करेंगे। आपने मेरी बात इतनी शांतिप्रिय ढंग से सुनी है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ में आपने कुछ विषयों को मेरी ओर लाने का प्रयास किया था, उसके ऊपर मैंने अपना योगदान करने का प्रयास किया है। एक विषय शायद आपने मुझसे कहा था कि आपने एक ब्रिज की बात की थी। मैं चुनाव के आचार संहिता से बंधा हुआ हूं, इसलिए मैं आपको आश्वासन तो नहीं देता, लेकिन मैं एक बात बोलता हूं कि आप इनका ब्रिज गुवाहाटी से सीधे जोड़ दो, आपका ब्रिज अपने आप बन जाएगा, इसकी आपको चिंता करनी चाहिए। यही आपसे मैं कहना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय अहम। অশেষ ধন্যবাদ আমাৰ মাননীয় ৰাষ্ট্ৰীয় অধ্যক্ষজী। পুনৰ আমি সকলোৱে কম ভাৰত মাতা কি।